जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 511th episode of live analysis. So today being Sunday, we are going to do the weekly analysis for Nifty BankNifty stocks, commodities, Forex and cryptocurrencies. We will also have a look at the global markets and now let us see what's in store for this coming week for markets. So, good evening, welcome, namaskar. Okay. So, on Friday, US market closed slightly on the negative side. So, S&P 500 again dropped for a consecutive 3 days over here and went till almost 4,400 level and again bounced back to close very close to 4,500. So, US markets will be under some sort of a pressure, not a huge pressure, but I think we have this bottom for almost for the month of February. I don't see this bottom getting broken or retested anytime in next 10 days. Maybe just before the end of Feb month, we might come down again. So overall, I'm neither very bullish nor bearish on the US market. Overall, we are going to see these type of repetitive swings right now. We are poised to go till 4700, 4720. These levels can come, but again, there is a lot of resistance over here, resistance over here. And again, in the month of March, we can see a heavy decline into these markets. If we do not trade above this 47 level, then again there will be heavy decline. So this will be the first, the second, and the third, which should be 161% of this entire leg. That should translate to 3900 on the S&P 500. So US market एक broadly speaking एक range bound फेज में चलेगा एंड राइट नाउ इट इज़ बुलिश। राइट नाउ इसमें जो है एक तेजी देखने को मिल सकती है 4700 4720 तक, बट अगेन लेटर ऑन वी आर एक्सपेक्टिंग वन मोर राउंड ऑफ अ डिक्लाइन। नैस्डैक में फ्राइडे के दिन एक अच्छा बाउंस हुआ था, सो नैस्डैक स्टेज अ गुड रिकवरी फ्रॉम द इंट्राडे बॉटम, बट अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर है। नैस्डैक is also backtesting the previously held channel. This was the channel which held Nasdaq for almost more than a year. And in the month of January, we have seen this breakdown, and now it is retesting. So I think Nasdaq will be range bound. I don't see Nasdaq crossing above 15,400 level anytime soon. This is a major resistance right now. You have this previously held supports turning into resistance, and there is a 50-day moving average which is also creating a which is which is also creating a resistance over here, right? So this is a sort of a major resistance for the Nasdaq, and Nasdaq, unless it doesn't process 15,500 level, we will see one more round of a decline. However, Nasdaq has already seen a nasty drop in the last month, and Nasdaq probably will try to move towards 15,500 level to at least retest this area, and probably then it will decide whether it wants to come down or it wants to go on the higher side. Amazon announced good earnings, right? So Amazon had a good earnings season, and that probably helped Nasdaq to some extent. However, the Meta यानी Facebook जो है इसमें बहुत ही heavy decline आया था, जिसके वजह से Nasdaq में pressure है. So these global markets, they are bound to remain under this distribution phase, जिसके बारे में हम कई महीनों से बात कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट है कि जनवरी में इस तरीके का आपको एक क्रैक दिखाई दिया मार्केट्स में. Heading towards the forex market, so US dollar has tried to make some bottom on Friday, but still not very secured one. Overall, I believe US dollar should bottom out here, somewhere here, okay, and then once again it should start to bounce. हो सकता है कि रेस्ट ऑफ फेब्रुवरी वी डोंट डू मच. बेसिकली मुझे ओवरऑल किसी भी मार्केट में यानी इक्विटी मार्केट में कोई खास ट्रेंडिंग मूव ऑन ईदर साइड मुझे नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट दिस वीक. So whether it is Nifty, Bank Nifty, global markets, or these equity markets, I don't see any kind of a trending move coming for this week. Okay, so इस week में मुझे सिर्फ एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाई दे रही है दोस्तों, और वो भी एक बिगर रेंज में. ओके, सो आई एम सीइंग एट एवरीथिंग
फ्रॉम अ रेंज बाउंड पर्सपेक्टिव, जहाँ पे दोनों साइड का मूव होना चाहिए, ठीक है। सो इफ यू गो डाउन देर विल बी वन अप मूव, इफ यू गो अप देर विल बी वन डाउन मूव। इस तरीके का इस वीक में बाजार को देख रहा हूं, और मैं इस बाजार को वीक ऑन वीक बेसिस ही अप्रोच करना चाहूंगा, बिकॉज स्पेशली इंडियन मार्केट्स में, बिकॉज बाजार में कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, ओके। एंड इट हैज़ बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम since this market has not made a new high. So today I'm going to present to you something very unique which I am sure आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम एनालिसिस निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी जनरली कितने दिनों में न्यू हाई बनाता है, और यदि उन दिनों में नहीं बनाता है तो क्या होता है, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव नाउ जॉइंड द लाइव सेशन। ओके, सो यूएस डॉलर में सेम व्यू है, वी आर एक्सपेक्टिंग रेंज बाउंड मूव टू हैपन, दिस इज अ पोटेंशियल सपोर्ट एरिया, हियर इट शुड टेक सपोर्ट एंड अगेन इट शुड बाउंस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ वेरी हाई बीटा मूव, इट जस्ट अ रेंज बाउंड प्ले, दोनों साइड की मूव्स होंगी। यूरो यूएसडी की तरफ चलें तो यूरो यूएसडी में लास्ट वीक में बहुत ही मैसिव एक पंप हुआ था, बहुत ही मैसिव एक अप मूव आया है विच इज़ वेरी नाइस, बट अगेन इट विल रन इनटू रेजिस्टेंस वेरी वेरी सून। ऑलरेडी फ्राइडे के दिन नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था, एंड दिस हैज ऑलरेडी हिट वन मेजर रेजिस्टेंस एज यू कैन सी, दिस इज द जस्ट बिफोर द कोविड, this level of 1.15, it's a very huge round number, and this is where it should take resistance. Probably these prices, they do not behave in a school book manner, so what they will do is they try to overshoot and they try to undershoot. Now this is one very significant principle of technical analysis, तो जो भी चार्ट एनालिसिस सीखना चाहता है इस थियरी को, इस जो नुआंस जो मैंने अभी जो आपको बताया है, इसे आपको नोट करना चाहिए कि प्राइजेस, they will never behave in a very school book sort of a manner, and if they are behaving, then be rest assured that in future they are going to crack below that level, in future they are going to crack below that level। तो इस चीज को नोट कर लेना चाहिए आपको। Okay, so euro, I think this is the box, this is the zone that I'll be watching for a resistance, and then one more pushback towards the 1.29 level. This is very much expected. After that, we will reach any conclusion whether euro has bottomed, whether euro is going to start a trend reversal, a bearish trend reversal, sorry, a bullish trend reversal of this bearishness which started since 2021, or this is just one of the earlier, just one of the big pullback that we have seen in last many times। Okay, so that will be very interesting because actually में यही रेस्ट ऑफ द ईयर का ट्रेंड सेट करेगा कि यूरो और डॉलर, ये यूरो डॉलर जो है ये किस डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, इफ यूरो सपोज हैज ब्रोकन आउट ऑफ दिस डाउन ट्रेंडिंग पिचफॉक, अगर यूरो अपने इस बेरिशनेस से निकल चुका है, then this would mean that later on when it starts that big third wave, or when it starts the resumption of the this new trend, that will coincide with lot of bullishness in the equity market, and you will see lot of emerging market equities hitting new highs। in that case आपका निफ्टी वगैरह जो है बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। मिड कैप कंपनीज, metal stocks and all these good counters who are simply consolidating since a long time, they will get a huge boost, and such counters will definitely rally by 30, 40, 50% also in no time। Okay, so everything, the global money supply is almost it can be judged through this euro dollar movement। so some easiness has come into the market, let us see whether it prevails or it is just short covering। so british pound की तरफ चलेंगे तो british pound ने फ्राइडे के दिन जो है एक डिक्लाइन लगाया है यहाँ पे। आई थिंक ब्रिटिश पाउंड एक ट्रिकी करेंसी अब इस समय हो चुका है, एंड आई सी इट इज बेस्ट अज्यूम टू सी इन दिस मैनर कि ये जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, एंड लेटर ऑन वी विल हैव टू सी विच साइड इट गोज। ओके, बिकॉज अगर यूरो अगर रिवर्स कर रहा है बुलिश साइड में तो ब्रिटिश पाउंड भी पीछे नहीं रहेगा। वी कैन सी वन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पेयर pattern getting formed over here। so inverse head and shoulder pair, then this triangle, if breaks on the higher side, it will signify a big move। okay, now इन सब बातों का क्या मतलब है, इन सब बातों से अपने को क्या लेना देना, और इन सब बातों से हम
करेंसी ट्रेडर्स इंडिया में बैठे बैठे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया में बैठे बैठे आप जो है यूएसडी आईएनआर और एनएससी पे जो 4 पेयर्स ट्रेड होते हैं, जो हम लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं, उन पे आप बेनिफिट कर सकते हो। सो दिस इज द यूएसडी आईएनआर पेयर एंड यूएसडी आईएनआर आई बिलीव लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे जो है 74 के जस्ट नीचे 73.85 मुझे याद है, यहाँ पे मैंने लॉन्ग कराया था और यहाँ से इट हैज मूव्ड ऑलमोस्ट ₹2 और ₹1.5। सो यूएसडी आईएनआर यू कैन प्रॉफिट फ्रॉम दिस। नाउ यूएसडी आईएनआर में आई एम स्टिल बुलिश, हाउएवर बाइंग लेवल, अगर आपको फ्रेश बाइंग लेवल करना है तो थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना होगा कि राउंड अबाउट स्पॉट पे अभी 74.64 चल रहा है। 74 पॉइंट ये जो स्लैब है आपका, ये जो सपोर्ट्स है, आई थिंक ये वाजिब सपोर्ट है, यानी 74.5, 74.5 से लेके 74.30, ये स्पॉट पे 20 पैसे का ये जो स्लैब है, ये एक अच्छा स्लैब है। मैं समझता हूँ यहाँ पे एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए विद दिस 73.6 और 7 एज अ स्टॉप लॉस, यानी राउंड अबाउट ₹1 का यहाँ पे रिस्क तो है, दैट इज फॉर श्योर, बट वी हैव scope open till 76.6। ओके, सो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत ही अच्छा है। जनरली फॉरेक्स में रिस्क रिवॉर्ड हमें उतना नहीं अच्छा मिल पाता है बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडिंग द स्पॉट फॉरेक्स लाइक द फॉरेन गाइज, वी हैव टू ट्रेड द फ्यूचर्स मार्केट फ्रॉम द एनएससी। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है, यहाँ पे एक्यूरेसी होती है। सो वी आर राइट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द करेंसी मार्केट्स बिकॉज वी जज द मैक्रोज वेरी वेरी करेक्टली, और उस वजह से हमें जो है करेंसी के रेंज, करेंसी के ट्रेंड, करेंसी की स्ट्रेंथ, इनमें ज़्यादा अच्छा गाइडेंस मिल पाता है। सो ये एक यूएसडी आईएनआर पे बुलिश ट्रेड होगा। फिलहाल मैं समझता हूँ इसे थोड़ा सा नीचे आने देंगे और फिर बाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कुछ करेंसीज के रेंज में आपको एक अभी मेंशन करके दे देता हूँ। तो जैसे यूएसडी आईएनआर अभी मैंने बताया आपको कि रफली से 74.50 to 76। okay, this can be one range, trading range। यूरो आईएनआर में बहुत ही सॉलिड अप मूव आया है लास्ट वीक। सो यूरो आईएनआर आई थिंक शुड रन इनटू रेजिस्टेंस 84 टू मे बी 86, इस तरीके से मैं इसे देख रहा हूँ। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना, अननेसेसरी का शॉर्टिंग मत करना, एवरेजिंग बहुत ज़्यादा मत करना, इस रेंज में ट्रेड होगा। जीबीपी आईएनआर बहुत ही शानदार, जीबीपी आईएनआर में दोस्तों अगेन दैट 100 to 102.5 दैट रेंज विल स्टिल होल्ड। ओके, सो जीबीपी आईएनआर में फ्राइडे के दिन एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था बिकॉज इट केम वेरी क्लोज टू दिस 102 and it was very very stretched, so there was a good chance for a ₹1 decline which actually happened। ₹1 नहीं हुआ but actually 50 पैसे happened intraday, so that was actually very sweet trade। okay, now next time when it goes near 102, kindly don't short, kindly don't short till it reaches 102.5 because next time ये आपको ट्रैप बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा 102 के ऊपर इसे जाने देंगे और फिर ऊपर में शॉर्ट करना। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आई थिंक 100 to 102.5 विल रिमेन अ वेरी हेल्दी रेंज एंड आई डोंट सी इट ब्रेकिंग ऑन द इधर साइड। सिमिलरली यूरो में 86 87 स्ट्रेच मार सकता है, 86 एंड हाफ ये स्ट्रेच मार सकता है क्योंकि यूरो ने जस्ट अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, सो वी आर होपिंग दैट इट विल रन आउट ऑफ एग्जॉशन, बट जैसा मैंने दिखाया कि उसमें 1.15 के ऊपर भी जाने का स्कोप है, ऊपर से एक मूविंग एवरेज आ रही है जिसको वो रिटेस्ट कर सकता है। सो दैट एडिशनल स्कोप विल वाइडन दिस फ्रॉम 86 टू 87। 87 नहीं होगा, 50 पैसा बढ़ सकता है। ठीक है, 50 पैसा बढ़ सकता है। जेपीवाई एनआर की बात करते हैं, सबसे स्वीटेस्ट पेयर और इस वीक में सबसे स्वीट शॉर्ट ट्रेड इसमें मिला था। सो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन जेपीवाई एनआर। सो मैं समझता हूँ ये जो है बेरिश है और सबसे शॉर्ट में वाजिब शॉर्ट ट्रेड, सबसे बेस्ट शॉर्ट साइड आपको जेपीवाई आईएनआर में मिलेगा। ठीक है, और जीबीपी और यूरो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल खेलना होगा, ये केयरफुल पेयर्स हैं। जेपीवाई इजी पेयर है और यूएसडी आईएनआर में तो कभी कोई चिंता हुई नहीं है। ठीक है, सो जेपीवाई आईएनआर जो है इसमें दोस्तों क्या रेंज हम रखेंगे, 64 रुपीज़ हम रखेंगे, 64 टू यू कैन से 66। अभी शॉर्ट साइड सेल ऑन राइज करना है जेपीवाई आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में अभी सेल ऑन राइज करना है, 102 वाले स्लैब से नीचे जा रहा है। ये वाला पार्ट मत भूलना कि अगर दूसरी बार 102 आए तो शॉर्ट मत करना,
जाने देना ऊपर, और फिर बाद में हम करेंगे। यूरो आईएनआर में आप छोटा शॉर्ट ट्रेड्स ऐड कर सकते हो इस 86 के रेंज में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना कि थोड़ा ये ऊपर जा सकता है, तो 86 87 के स्लैब में करना, इसमें भी एक पुल बैक मिलेगा, और यूएसडी आईएनआर नीचे से ऊपर बाय करना है, ठीक है। सो आई होप कि मैंने करेंसी में बहुत ही शानदार एनालिसिस और काफ़ी इन डेप्थ आपको सारी बातें बता दी है। और जो लोग करेंसी ट्रेड करते हैं, स्पेशली आई थिंक सिर्फ मेरे ग्रुप वाले ही करते हैं, so I think you should note it down, and you can watch it again and again and again till you are very clear in your heads about the trading for forex, ठीक है। ओके, चलिए वेरी क्विकली हम बढ़ते हैं कमोडिटीज मार्केट की तरफ, जहां पे नेचुरल गैस में हवा निकल गई है। नेचुरल गैस 410 से 350, 60 रुपीज की डिक्लाइन अगेन। दैट सेम थिंग गॉट रिपीटेड ओवर हियर, एंड दिस इज प्रिसाइसली द रीजन मैंने कहा कि ऊपर में इसे चेज मत करना। एक बहुत अच्छी अपमूव हो चुकी है, प्रॉफिट्स वगैरह लॉक करो। प्रीवियस रेजिस्टेंस था 410 के पास, एंड परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। इसका मुझे अंदाजा था दोस्तों, क्योंकि ये सेम वाइड रेंज कैंडल जिस दिन भी ये करता है नेचुरल गैस में, आप देखो हर बार इसमें प्रॉब्लम होता है। वाइड रेंज कैंडल रिवर्स, वाइड रेंज कैंडल रिवर्स, वाइड रेंज कैंडल रिवर्स, ओके, अगेन वाइड रेंज कैंडल रिवर्स। सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक, जो नेचुरल गैस के पुराने खिलाड़ी हैं उनको पता है कि एनजी जो है ना, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट ब्रीड ऑफ अ कमोडिटी। इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर करता है। टेक्निकल्स तो आपको एक रिवर्सल्स बताएंगे, बट खेलने का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। सो यू नो, वेरी ह्यूज मूव्स कमिंग इन द नेचुरल गैस मार्केट नाउ। अब इसे वापस कहाँ बाय करना है, ठीक है, वापस कहाँ बाय करना है। सो लेट अस just have a look at the weekly chart once. So the weekly chart is not that good, I would say. वीकली चार्ट कोई बहुत उतना ग्रेट नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा वेट करूंगा और फर्दर करेक्शंस। आई थिंक आई विल अलाउ इट टू फॉल मोर नियर 325 और 330, ठीक है, तभी मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट आएगा। इसमें मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड दिस ग्रेट मूव। So right now I would like to see where it bottoms out. I think 325 is a good level. This is a good slab, 330 to 325, and I think it should take at least some support in this range of 320 to 330, somewhere here, and then start the next leg on higher side. ऐसा मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, ठीक है। सो हम इसे थोड़ा सा समय देंगे, ठीक है। लेट अस गिव इट सम टाइम, एंड देन we will play. Now suppose you get this level 320, 325, you have bought, then keep a stop loss of 300. So it's a pretty big stop loss. So if you can manage, then only you should take this trade, because it's a risky trade, and you should keep a stop loss of 300, and then let us see where it goes. दूसरा दूसरा वे ये है कि इसे आने दीजिए यहाँ पे, और थोड़ा देखते हैं रिवर्सल वगैरह जब होना शुरू करेगा तब बाय करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज मूव्स आर वेरी वेरी लार्ज। So if you are willing to take a risk, you can take a risk between 320 to 330 with a stop loss of 300, and then target is all open till 467. That is up to you. If you can manage, then only आपको ये ट्रेड लेना चाहिए, नहीं तो इग्नोर करिए। क्रूड की बात करते हैं। सो क्रूड पे किसने 6850 का टारगेट दिया था, मुझे उस शख्स का नाम बता दीजिए। सो क्रूड पे दोस्तों आपके सामने सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। क्रूड वॉज बुलिश, और बहुत बार इसके बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत लॉजिक लगाई। नाउ ऑन फ्राइडे वी ऑलमोस्ट हिट अ अपर सर्किट इन द MCX क्रूड ऑयल, and I am damn sure that it has created a short trap over here. So crude को short मत करिए जब तक ये 7100 वगैरह नहीं जाता। So crude I think is still very bullish। $91 की हमारी बात हुई थी, काफ़ी पहले से इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आई स्पोक अबाउट दैट $91 थिंग समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, right? And that time we hit a resistance, we got a heavy correction over here, then we became bearish, we tried to short here, right? Then we tried to short here, but this time trend had reversed, and since then I have been maintaining the bullish stance, especially जब ये 6000 ये break हुआ, because after this the first target was 6400, which got done over here. It made a new high, correct, it made a new high, dropped, and again reversed। बस यहाँ पे इस दिन गेम चेंज था बॉस, कि क्रूड अब 6850 डेफिनेटली जा रहा है।
पूरी कॉन्टेक्स्ट अगर आप पीस बाय पीस देखेंगे, मैंने ये भी बताया था कि क्रूड हमेशा 4-5 दिन का एक फ्लैग बनाता है, ब्रेकआउट करता है। इस स्ट्रक्चर को आप वॉच कीजिए, ये क्रूड की एक खास पैटर्न बन चुकी है इस पूरे पोस्ट कोविड मार्केट में। इफ यू सी एवरी मूव इज सॉर्ट ऑफ अ फ्लैग ब्रेकआउट, एवरी मूव्स is sort of a flag breakout, every single move, and it happens through a gap up opening. So Friday को बहुत ही शानदार था. I think crude is going to hit 7100 pair minimum before reversing or before showing any sign of a weakness. Now अगर हम बात करें कि कॉमिक्स क्रूड की, WTI क्रूड की, तो I think that is very bullish. Okay, सो हमें क्रूड पे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, एंड दिस rise in crude oil prices can definitely impact the our equity market also, but I think still जब तक 71 है तब तक I think क्रूड का उतना impact नहीं दिखेगा, because you see these higher rates they need to sustain over a period of time to trigger some downward pressure in the economy. ठीक है, स्ट्रेस सिस्टम में स्ट्रेस कब आएगा, जब वो सस्टेन करेगा. ओके, फॉर वंस इवन यू कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 50 kg, बट इफ आई आस्क यू टू कीप इट होल्डिंग फॉर से 30 seconds, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. करेक्ट, बिकॉज दैट स्ट्रेस गेट्स इनटू दिस सिस्टम. सो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अभी क्रूड के वजह से अभी निफ्टी अगर गिरा भी तो लोग बोलेंगे कि चलो क्रूड के वजह से गिरा, बट नो, दैट विल नॉट बी रीजन. Reason will be just a technical drop in Nifty, nothing else. But yes, if crude is surpassing 7100, crude is like maintaining this higher level, then definitely it will add pressure to the system, 100%. Now on 7th we had the RBI policy. Sorry, on 9th we had the RBI policy, but because of I think the demise of legendary Lata Mangeshkar ji, I think they will postpone. I am sure they will postpone. So the new date, I don't know when it will be scheduled or rescheduled. But whatever it is, अगर 9th को होता है या मान लीजिए 11th को होता है, 11th Feb, which is the new date, I think this date should come. So RBI will definitely factor in this point which I am discussing. RBI will definitely pay attention that what if crude stays at $100 level, because you see psychologically $100 is a huge level and we are coming here after many years. Okay, so 91 is broken. Obviously target क्या है, $100. टेक्निकल टारगेट क्या है, $112 बेयर मिनिमम. ओके, 19th Feb, somebody is telling 8 to 10th Feb. Okay, let me confirm the date, जो भी डेट है. तो आरबीआई इस चीज को ध्यान में रखेगा कि बॉस ये क्रूड का क्या करना है. ठीक है, now this is a very problematic situation for our market, because technically अगर क्रूड ऊपर रहता है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, और साथ में अगर यूएसडी आईएनआर भी ऊपर चलने लगा तो फिर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई यू सी द आरबीआई इज मैनेजिंग द यूएसडी आईएनआर. आरबीआई इज डूइंग वेरी स्मार्ट थिंकिंग, कि क्रूड हमारे हाथ में नहीं है बट यूएसडी आईएनआर अपने हाथ में है. करेक्ट, सो इफ वी कैन पुश डाउन द यूएसडी आईएनआर वी कैन ऑफसेट सम सॉर्ट ऑफ क्रूड लॉस. ठीक है, और इजीली आरबीआई ने बहुत अच्छी डॉलर सेलिंग की है, बहुत अच्छी यूएसडी आईएनआर को एक कैप में रखा है. इसलिए मैंने कहा कि यूएसडी आईएनआर थोड़ा और नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ेगा. ठीक है, ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है. जो लोगों ने 2013 वगैरह का करेंसी क्राइसिस वगैरह नहीं देखा है, जिनको करेंसी मार्केट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो लेट मी टेल यू, एक्चुअल वॉर्स आर फॉट इन द करेंसी मार्केट्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जितने करेंसी स्पेकुलेटर्स हैं लाइक जॉर्ज सोरोस, दे हैव बिकम एक्टिव इन द मार्केट. व्हाई? बिकॉज आरबीआई क्रूड को कुछ नहीं कर सकता है, वो शेख के हाथ में है. ठीक है, बट आरबीआई कैन शेक द यूएसडी आईएनआर, बट ये भी वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि और ज्यादा नीचे आएगा तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आएगा, फिर चाइना विल टेक एडवांटेज या जो भी हो. करेक्ट, सो ये भी एक लिमिटेड रिसोर्स है आरबीआई के पास. सो यहाँ पे ये सिचुएशन है दोस्तों कि आरबीआई विल ट्राई इट्स बेस्ट टू रिड्यूस दिस यूएसडी आईएनआर, टू कीप दिस डाउन. ओके, एंड इफ क्रूड कीप्स गोइंग हायर, the speculators, the Soros and the likes of them, they know that this is the right time to attack the USD INR. ठीक है, so what they will do, they will long USD INR through their channels in the offshore market, onshore market, and they will fight the RBI. So there will be RBI
pushing it down. There will be currency terrorist who will try to lift it up, और इस गहमा गहमी में होगा क्या, वॉलेटिलिटी होगी, जिसके वजह से आपका इक्विटी मार्केट भी रेंज बाउंड रहेगा, बट वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और क्रूड अपना अलग तांडव करेगा। सो एमसीएक्स ट्रेडिंग भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली क्रूड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो कि वॉलेटिलिटी is going to increase, not this week I think it will be mostly a like reasonable market, but after this week we can see spike in volatility अगर crude is 7100 के ऊपर चलना शुरू करता है तो, ठीक है, and that will actually create volatility in the global markets. सो मैक्रो थीम पे थोड़ा ध्यान देना, वी आर हेडिंग इनटू से आफ्टर फेब्रुअरी, मार्च एक और महीना है जब मार्केट के पास एक स्कोप है कुछ करने का, बट आफ्टर मार्च वी विल बी हेडिंग इनटू अ टाइम बैंड जहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट्स में एंड ऑल्सो ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सो हम सारी चीज़ों पे नज़र जमाए रखेंगे, ठीक है। सो फॉर क्रूड राइट नाउ वी आर बुलिश, ट्रेडेबल थोड़ा सा नहीं होगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा, बट फिर भी 7100 इज द इमीडिएट टारगेट, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये 7100 के ऊपर लाइक 72 भी एक बार शूट करे। न्यू सपोर्ट फॉर क्रूड comes at 6500, so 6500 is the base, 71 to 7200 is the immediate target, okay, and no shorting as of now unless you get a huge reversal on a daily candle after hitting this 7200 slab, तब तक कोई shorting नहीं करना है, ये नया रेंज बन जाएगा, एंड 6400 6500 ये आपका बेस है और 7100 टू 7200 आपका सीलिंग है, ठीक है। सो दैट्स इट, क्रूड पे सिर्फ इतना ही बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर, सो गोल्ड सिल्वर पे भी अच्छी एनालिसिस है। गोल्ड आई एम लाइक बुलिश, बट आई वांट सम लोअर प्राइसेस इन गोल्ड। सी गोल्ड पे गोल्ड कॉमिक्स जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है, सो आई लाइक गोल्ड, बट आई वांट टू सी गोल्ड ब्रेकिंग दिस बेयर फ्लैग फॉर वंस, coming down near this, flushing it and then bouncing strongly, ठीक है। सो ये बहुत ही एक ऑब्वियस एक चैनल बन चुका है, बहुत ही ऑब्वियस, नर्सरी का बच्चा भी इसको देख रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो आप 47,600 पे यहाँ पे आप बाय करो, ठीक है, 47,600 पे आप मिनी लॉट्स यहाँ पे बाय करो, फिर 47,200 पे यहाँ पे आप उसको एवरेज करो, कीप अ स्टॉप लॉस 47,000, ठीक है, एंड देन वेट फॉर स्ट्रेट टारगेट ऑफ 49,000। एक तो ये ट्रेड है इस तरीके से, जो डे टू डे ट्रेड करना चाहता है आपके लिए 48,000 या 48,050, दैट इज से 48,100 दैट इज द रेजिस्टेंस, एंड 47,500 इज द सपोर्ट। आप इस 500 पॉइंट में लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर एक्सट्रीम साइड पे क्लोजिंग देता है तो पोजीशन उल्टा घर लेके मत जाना, यानी 48,000 पे क्लोज कर रहा है तो शॉर्ट करके मत जाना, बिकॉज अगले दिन गैप अप खुलेगा तो इट विल स्पाइक। सिमिलरली अगर नीचे आप लॉन्ग करके जा रहे हैं तो फिर नीचे खुल सकता है, ये क्रैक कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग। सो ओवरऑल ये 600-500 पॉइंट का जोन है जहां पे आप जो है लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग करना है बुलिश साइड में, तो जैसा मैंने बताया दो पार्ट में हम इस तरीके से कर सकते हैं, मिनी लॉट्स में। अगर आपको पूरा ही टेक्निकल पे ट्रेड करना है, वेट करना है अच्छे लेवल का, देन आई थिंक यू विल हैव टू वेट, लेट दिस बेयर फ्लैग क्रैक ऑन द लोअर साइड, वी विल ट्राई टू स्टार्ट बाइंग नियर 47,250 एक्सेट्रा, कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो 47,000, सिंगल टारगेट होगा 49,000 49,500 एक्सेट्रा, ठीक है। सो मुझे इस चैनल पे काफ़ी भरोसा है, मुझे नहीं लगता कि ये चैनल ब्रेक होगा ऑन लाइक सस्टेनेबल बेसिस, बट येस एक बार अगर ये ऐसे फ्लश कर दे तो एक चीज़ निश्चित हो जाएगी कि 47,700 से लेके 49,500 यानी 1800 पॉइंट ये आपके हाथ में आएगा, यानी 1.8 लाख पर लॉट, ठीक है। ये है कॉन्टेक्स्ट। सो दैट्स ऑल ऑन गोल्ड। सिल्वर पे अभी कोई व्यू नहीं है मेरा, सिल्वर भी बुलिश है बट मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। कॉपर 756 के दायरे पे खड़ा है, पुरानी एनालिसिस जो है वो इंटैक्ट है, और अभी जैसा मैंने कहा कि गैप अप होता है तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। मुझे लगता है कॉपर को बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना अभी इस समय, जब तक कि वो 765 जाके वापस 758 की क्लोजिंग ना दे, ठीक है। जो अभी मैंने कहा उसे ध्यान से सुनना, यदि वो चीज़ मिलती है तो बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रेड मिलेगा अपने को, बिकॉज दैट वुड सिग्निफाई दैट वी ब्रोक अबाउट दिस and came back, which is a false breakout. Okay, so there is one false breakdown, there is one false breakout, overall maintaining the range of what 760 to 730,
और इसके बाद जहां भी गाड़ी निकली, जैसा मैंने पहले कहा है, 100 पॉइंट्स मूव सिंगल डायरेक्शन, 2.5 लाख पर लॉट का ट्रेड बनने वाला है। तो या तो आपके सामने दो विकल्प है, या तो फंसिए उसके सामने गलत ट्रेड लेके, या फिर फिलहाल एक रेंज प्ले करो एंड देन एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड लो ट्रेंड साइड का। सी एमसीएक्स इज ऑल अबाउट प्लानिंग। एमसीएक्स में जब तक आप एक पर्सपेक्टिव लेके प्लान नहीं करोगे अपने गेम को, आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। और अगर प्लान करके करोगे तो आप इसके या फिर आप राजा बन जाओगे। दैट इज ऑल अबाउट एमसीएक्स। Okay, so that's all on this section of commodities. I think बाकी निकल very quickly इनको चेक कर लेते हैं और फिर इक्विटीज पे चलते हैं। सो निकल आई थिंक बुलिश है। आई थिंक ओवरऑल निकल में अगर कोई डिप आती है समवेयर नियर से 1700, आई थिंक इसको बाय आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा रेंज बहुत बढ़ चुका है। सो यू कैन बाय नियर 1700 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1650 and for that same target of say 1840 there is this gap over here, I can see this gap, तो ये टारगेट होगा, ठीक है। बट अगेन 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सो देख लेना। आई थिंक इट इज टू मच, बट दैट्स द ओनली ट्रेड आई कैन सी। एल्यूमिनियम 246, 3 पॉइंट ऊपर था फ्राइडे को, एंड एल्यूमिनियम इज बुलिश। हिंडाल्को इज बुलिश, हिंडाल्को न्यू हाई बनाएगा। एल्यूमिनियम भी ऑलमोस्ट न्यू हाई बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सो एल्यूमिनियम में दोस्तों कोई भी गिरावट आती है 235 के आसपास डेफिनेटली बाय करना चाहिए 230 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 265 270 का टारगेट होगा। एल्यूमिनियम इज गोइंग क्रेजी। एल्यूमिनियम में तेजी बहुत ही खतरनाक है। ओके, एंड एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अवेलेबल मेटल ऑन अर्थ, और अगर ये ऑल टाइम हाई चल रहा है तो आप समझ जाओ कि या तो सप्लाई कंस्ट्रेंट कितनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना बिगड़ा हुआ है, या फिर इन्फ्लेशन आग लगा देगा। जो चीज, जो मेटल धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, अगर वो अभी लास्ट क्वार्टर में एक हाई प्रिंट किया था और बहुत ही सॉलिड करेक्शन हुई थी, ओके, एंड आई थॉट प्रॉब्ली दिस इज द एंड, दिस इज लाइक द टॉप फॉर दिस एंटायर अप मूव, एंड इफ यू आर हेडिंग अगेन बैक, तो आप समझ जाओ कि ये अगर एक मात्र 10% भी ऊपर जाता है तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 300 के आसपास एल्यूमिनियम पहुंच जाएगा। समझो बात को, ठीक है। सो एल्यूमिनियम इज बुलिश, एनी डिप टुवर्ड्स 235 236 इसको बाय कर सकते हैं। 229 यानी 230 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट सीधे न्यू हाई है। बहुत ही तेजी है इसमें, आग लगने वाली इन सब कमोडिटीज में। लेड आपको बता चुका हूं, बाय करके रख दो। लेड 220 का आंकड़ा हिट करेगा, और ऐसा हिट करेगा कि दुनिया याद रखेगी, ठीक है। जिंक 298, जिंक इज अगेन कॉइलिंग अप फॉर अ बिग ब्रेकआउट। 312 का अपना टारगेट है, जिंक को बाय कर लेना चाहिए। एक ट्रेड दे रहा हूं मैं जिंक में, बड़ा स्टॉप लॉस है, प्रॉब्लम यही है, बड़ा स्टॉप लॉस है 292। 292 का रिस्की ट्रेड है। व्हाई इट इज रिस्की? सी, if metals continue the up move, I think this is a very nice triangle and it should break out immediately for 315। तो अगर आप इसको बाय करते हो 298 के आसपास, 292 का एक स्टॉप लॉस है इस ट्राइंगल का बेस, एंड टारगेट इज 315 मिनिमम। हो सकता है यहाँ से स्पाइक मार दे सीधे 340, ये तो बात की बात है, बट 315 कैन बी अचीव वेरी वेरी सून। सो ये एक ट्रेड है। सीएमसीएक्स को सेबी ने बर्बाद कर दिया है बिकॉज ऑफ द लॉट साइज। मिनी लॉट्स अगर यदि होते पहले जैसे, तो आई थिंक कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता, बिकॉज आपको इतनी हाई प्रोबेबिलिटी एमसीएक्स में ट्रेड मिलती। So we are waiting for the new chairman to come another 5 months, and after that MCX जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा इंडिया में। So this is the thing guys। 290 आप देख सकते हैं फ्लोर है इस चार्ट पे 290 का, और पूरा विंडो खुला 340 तक, ठीक है। और न्यू हाई इसमें बन सकता है। एल्यूमिनियम अगर बनाएगा तो ये भी बनाएगा। तो इस तरीके से आप चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। चार्ट्स को रेडी करिए, बिकॉज यहाँ पे महत्वपूर्ण ट्रेड्स, इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आर लाइनिंग अप, ठीक है। दीज आर स्ट्रेटेजिक ट्रेड्स। इक्विटी फेल हो सकता है, एमसीएक्स फेल नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स इट। सो दैट्स अबाउट द कमोडिटी सेक्शन। वेरी क्विकली बिटकॉइन और क्रिप्टो की तरफ चलते हैं और फिर एमसीएक्स में, सॉरी, एनएससी की तरफ आते हैं। सो जैसा कि अंदाजा लगाया था हमने कि वी आर इन द लेट स्टेज ऑफ दिस बेयर मार्केट, ओके, एंड अगर ये शॉर्ट ट्रेड फेल होता है तो आप समझ जाना कि बहुत ही तेजी क्रिप्टो में आने वाली है, करेक्ट। Now, what is the learning from this? See, learning for budding technical analyst is this, that you should always plan for both the side of the trade। क्योंकि बाजार में अगर बायर है तो सेलर भी है, तो बाजार के डीएनए में है डुअलिटी, ओके। और यही चीज़ मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में सिखाता हूँ अपने जो हमारी ट्रेनिंग होती है, विच इज़ आई थिंक लाइंड अप फॉर
this weekend, coming weekend, February 12th and 13th. And those who are interested, you can WhatsApp and you can register. We are already on Sunday, so hardly 3 4 days are left. So those who are interested, you can WhatsApp, you can join, and once you join, you will be added in the Telegram group for a period of 3 months. Okay, so Bitcoin is right now bullish, definitely bullish, and we are expecting 46,000 to be hit, which is again ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट मूव. सो बाय ऑन डिप इसमें करनी चाहिए. बाय कहाँ करेंगे? 41,000 से 40,000 के स्लैब में बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस आप रख सकते हो ऑलमोस्ट 36,000 या 37,000 का. सो सम सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्रेड दिस. ठीक है, यू कैन ट्रेड दिस. ये एक अच्छा लेवल है जहां पे मैं समझता हूं कि अगर कोई डिप आता है तो आप इसे बाय करिए, या इसका ब्रेकआउट भी बाय कर सकते हैं, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ समवेयर नियर 39,000. टारगेट विल बी 46.5. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर ये डाउन ट्रेंड फ्लॉप होता है, बिकॉज वी आर इन अ वेरी वेरी लेट स्टेज, इफ दिस डाउन ट्रेंड फ्लॉप्स, ठीक है, देन दिस विल हैपन. 52 पहला टारगेट, 46 दूसरा 52. ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे अब हो चुकी है, विच ऑल्सो मीन्स दैट दिस बिग हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन इज नॉट वेरी वाइबल. देर आर नो सप्लायर्स, यहाँ पे सप्लाई नहीं है सिस्टम में. तो अगर सप्लाई नहीं है तो पहला राउंड होगा शॉर्ट कवरिंग का, दूसरा राउंड होगा रीएक्यूमुलेशन का, और तीसरा राउंड होगा मार्कअप का. ठीक है, तो हम अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. वी विल टेक पीस बाय पीस ऑन दी बिटकॉइन. इथेरियम की बात करें, 3000 पे ट्रेड हो रहा है. इथेरियम स्टिल हैज लॉट ऑफ रूम. वी कैन सी दिस टू मूविंग एवरेजेस किसिंग ईच अदर. ये जो लेवल है 30 to 70, दैट शुड बी द टारगेट इन दिस अप मूव. ये टारगेट होगा, यानी $300 अभी भी इसे ऊपर जाना है. So right now, I think a very good entry can be taken at 2820, 2820. Keep a stop loss of say 2600, and very nice target of 3300 is coming on Ethereum. ठीक है, सो इथेरियम पे ट्रेड करो. इथेरियम मस्त है एकदम, वेरी नाइस, एक्सेलेंट. और बाकी जो लोग ये टैक्स वैक्स और ये सब के चक्कर में आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट इट. जब जो होगा तब देखेंगे, पहले भी माल कमाओ. ठीक है, माल आएगा तब भरोगे ना, पहले माल कमाने पे देखो. सो दैट्स ऑल. सो आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, एंड इस समय हम चलते हैं अब हमारे इक्विटी मार्केट के सेक्शन पे. तो दोस्तों, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए. सो फ्राइडे व्हाट हैपेंड? सी, फ्राइडे देयर वाज अ सेल ऑफ. ठीक है, नॉट सेल ऑफ, बट देयर वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द थर्सडेज मूव, बट कोई मेजर डिक्लाइन नहीं हुआ. ठीक है, एंड दैट इज समथिंग विच इज नॉट गुड फ्रॉम अ बेयर्स परस्पेक्टिव, क्योंकि आपने जो थर्सडे का जो डिक्लाइन था, दैट वाज वेरी नाइस, एंड देन फ्राइडे यू जस्ट मेड अ नाइस बेल शेप under the VWAP, and you just stayed over there. So Friday there was a lack of continuation. हालांकि मुझे लगा था कि ये तो जिस टाइप का लेफ्ट हैंड साइड में कैंडल है, इसे बड़े आराम से 17,200 आना चाहिए. ठीक है, सो ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, बट इसमें हुआ नहीं. सो वेयर डज इट लीव अस राइट नाउ? सी, अब जो मैं निफ्टी वगैरह पे बोलने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा सा ध्यान से हमें सुनना होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा परिवर्तन है. ठीक है, सो हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर द निफ्टी एनालिसिस? दोस्तों, इस समय बाजार अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखें, ठीक है, बाजार अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखें, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है, बट ओके. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन क्या होता है. Okay, so let us delete everything. So where are we right now? Number one, we are in a long corrective phase of this market. ठीक है, मार्केट ने एक टॉप बनाया somewhere in the month of just in the early part of the October, and since then we are going zigzag, lot of volatility, lot of events unfolding, and we are reaching nowhere. ठीक है, we are reaching nowhere. Now there are various permutation and combination. Okay, we may end up doing some sort of channel which is like this. Okay, we may end up doing a long triangle phase which can be say sort of this. Okay, जहां भी ब्रेक होगा, ह्यूज मूव. ओके, सो इस तरीके की या तो चैनलाइज्ड या तो ट्राइंगल, दोनों एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और क्या होगा इनमें से ये मैं भी नहीं जानता. ठीक है, इनमें से क्या होगा बट मैं भी नहीं जानता. किसी ने लिखा है कि ओके, या बट एक चीज मुझे पता है. वो चीज क्या है? एक चीज मुझे पता है, और वो चीज ये है कि दिस मार्केट
is not likely to make a new high anytime before 10th of March. Okay, and even probably uh, late March या अराउंड 10th ऑफ अप्रैल. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक बार हम थोड़ा सा नजर डालते हैं पुराने हिस्टोरिकल डेटा पे. ठीक है, नाउ this is the weekly chart, but let's assume that I'm showing on a daily chart. Okay, let's assume that I'm showing on a daily chart. So if you go and open in your trading view, uh, first thing that should strike us, see बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत एनालिसिस करते हैं. ठीक है, कॉमन सेंस की बात मैं पूछता हूँ कि मार्केट में दम है तो न्यू हाई क्यों नहीं बन रहा है. ठीक है, मार्केट में दम है तो न्यू हाई क्यों नहीं बन रहा है. ये वही बात हो गई कि अगर टूटी चोर में दम है तो सीएम बन के दिखाओ. वो तो होगा नहीं. सो यहाँ पे लेट्स डू सम टाइम एनालिसिस. ओके, नाउ वी बॉटम समवेयर इन द मार्च 2020 एंड सिंस देन इट हैज बीन अ स्पेक्टेकुलर अप मूव. ठीक है, अब यहाँ पे बात ये समझनी है कितनी करेक्शंस आई हैं. 1 2 3 4 5 and this is sixth, and this is anybody's guess कि ये क्या है. Is it the start of say this, or is it the start of say this? We don't know, correct, but we know that this was a correction. ठीक है, now if you compare the price wise, you will observe that on an average a healthy medium term correction is always say 11 to 12%, 12.5% in equity markets. A normal day to day correction is not more than 2.5%. A medium term correction is never more than say 5%. ये slabs एक हैं जो ballpark figure हम लेके चलते हैं इक्विटी मार्केट में. ठीक है, similarly there are time cycles also, right? So generally एक दिस 2.5% एक्सेट्रा ये जनरली एक हफ्ते 10 दिन का होता है. ये 5% वगैरह में भी 20 डेज हो सकता है, और ये 11 से 12% वाला ये जनरली 65 डेज के स्लैब में होता है. 65 डेज 70 डेज मैक्सिमम. ठीक है, एंड देन न्यू हाई वगैरह फॉर्मेशन होता है. नाउ इफ यू एनालाइज our market which started say from this covid bottom, price wise this was almost the steepest, followed by this. Okay, and this consumed almost 65 days, and then there was a reversal, trend reversal. And if you check the old high to new high cycle, यानी कितने दिन बाद न्यू हाई बना, इस टॉप से कितने दिन बाद नया हाई बना, अगर आप इसको कंपेयर करोगे विथ एवरी करेक्शन. ठीक है, विथ एवरी करेक्शन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट हियर. इफ यू अंडरस्टैंड दिस साइकिल, ठीक है, आपको दिखाई देगा दैट from this covid bottom till this covid top, the maximum time consumed to make a new high after such a magnitude correction was this cycle. ठीक है, और इसको आई थिंक लगा था, इफ आई एम जस्ट आई हैव नॉट नोटेड, आई जस्ट डिड अ ओरल दिस थिंग. आई थिंक इट वाज समवेयर 175 डेज. ठीक है, 175 डेज था. ओके, 175 डेज था. Now, right now, we are at 105th day, approximately, which leaves us a duration of say 70 more days. These are calendar days, which translates into roughly 2 months, which means today is 6th of Feb, yani approximately say 9th or 10th of April, somewhere over here. ठीक है, या maybe the initial part of the April, somewhere over here. Now, if that has to happen, now why I am coming to this 175 days, because I have checked historically also. If after such a correction 65 day plus 11 to 12%, if the time taken to make a new high is most of the time 175 days. ठीक है ना, बाजार में कुछ भी हो सकता है कल ही न्यू हाई बन जाए, बट जो भी पुराने एग्जांपल्स हैं, सैंपल्स हैं, उनको एनालाइज करने पे ये समझ में आता है. ठीक है, तो इफ दैट 175 डे लॉजिक होल्ड्स, देन 10th ऑफ अप्रैल के आसपास हमें जो है एक, अगर तब तक बाजार में सारी चीजें ठीक रही, तो दैट विल बी द टाइम व्हेन दिस एंटायर correction, price and time correction should get over, and you will see a huge trending move in the market. If that happens to be on upside, then definitely 20-22 हजार, सॉरी 22 नहीं, बट 20 से 20,600 वगैरह के स्तर पे हम जा सकते हैं. और अगर ये नीचे में कन्वर्ट होता है तो टाटा बाय बाय खत्म. ठीक है,
तो नाउ अगर ये चीज होना है तो दिस मार्केट हैज टू रिमेन इनसाइड of this, almost you can say a trend line like this, make a channel, or simply make a triangle, or there is one more scope and that it can do, and that is very weird, that is, okay, make something like this and keep consuming time. ठीक है, make something like this and just eating the time. ठीक है, ना ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने 10 मिनट क्यों बर्बाद किए ये बोलने के लिए, इसलिए बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस हनीमून पीरियड फ्रॉम कोविड, पीपल आर कंडीशन, जैसे ही ये मार्केट बुलिश होता है पब्लिक न्यू हाई की बात करेगी, जैसे ही ये मार्केट बेरिश होगा पब्लिक सीधे कोलैप्स की बात करेगी। ठीक है, आई थिंक इनसे अब बचना है। ठीक है, ये न्यू हाई और एकदम एक्सट्रीम बेयर, इनको आप भगाओ, इग्नोर ऑल दिस थिंग्स and just focus on this range bound activity with both side movement. I think you have 16,800 as a floor, and you have 16,800 as a floor, and you have 18,100 as a ceiling for this market, not only for Feb but also I think for March and I think first week of April. एक ही केस में ये either side break होगा, and that will be some news or something which is like unique, जैसे 10th मार्च को यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, सो ऑब्वियसली देयर कैन बी लार्ज रैली, सो अगर बाजार ऊपर ऊपर में है तो हो सकता है वो स्पाइक अप कर दे। ठीक है, सो एनीवेज कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझा रहा था, अब हम सीधे लेवल पे आते हैं कि इस वीक में क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एंड आई थिंक दैट मैटर विल बी ओवर वेरी वेरी सून। सो व्हाट इज द लेवल, लेट मी ओपन द डेली चार्ट एंड फिर हम सीधे स्टॉक एनालिसिस पे चलेंगे। बैंक निफ्टी बहुत ही आसान है एक्सप्लेन करना। सी राइट नाउ आई थिंक फॉर दिस वीक आई वुड कीप योर 17,650 एज द मेक और ब्रेक लेवल। ओके, सो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा वीकली और कल के लिए, दोनों के लिए। ये आपका ये जो लेवल है वीकली मॉब लेवल, हम इसे रखेंगे 17,625 में रखता हूँ। ओके, 17,625 which is almost just above Friday's high, and above this we can go and hit this resistance which is 17,835, and then this level which is say 18,080 के आसपास, 18,080 18,050 sort of a level. Okay, on the downside we have entire this room open, we have this and this. So first target on the downside will be 17,350, second target will be 17,150, and in extreme case third will be say 16,900. Okay, overall I don't expect this market in this week to go anywhere below 17,000 on a sustainable basis and above like 18,000 on a sustainable basis. I think it is going to toss around in this sort of a, you can say, triangle, in this sort of a triangle in this manner, जहां पे नीचे में 17,200 एक अच्छी काबिलियत रखता है एक और इम्पल्स जनरेट करने का, और इस तरीके से हम पूरा फेब को आई थिंक वी आर गोइंग टू स्पेंड। ओके, सो ओवरऑल 17 and 18, these are broadly speaking the floor and ceiling for this market. Both side moves are possible. क्रूड पे हमें वॉच करना होगा, अगर क्रूड एक ब्लैक स्वान इवेंट में कन्वर्ट होता है, यानी कल के दिन क्रूड भाग गया $200, तब तो फिर समझ लो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो इन ऑल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दीज लेवल्स, दीज कॉन्टेक्स्ट एंड दीज एनालिसिस विल होल्ड ट्रू। ठीक है, कल के लिए भी दोस्तों फ्राइडे का हाई यानी 17,625 ये मॉब लेवल होगा और इसी के अनुसार हम ट्रेड करेंगे। सो विद दिस आई कंप्लीट निफ्टी एनालिसिस फॉर द टाइम बीइंग। और भी बाकी बातें हैं टेक्निकल्स जो हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी स्टॉक्स लेना है। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। सो बैंक निफ्टी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग केस, एंड व्हाई सो शॉर्ट में बताता हूँ। इंटरेस्टिंग केस इसलिए है बिकॉज आई थिंक बैंक निफ्टी आफ्टर सम डिक्लाइन has window till 40,300 40,400, and I think what is interesting to see on this chart is that bank nifty is going to be a amazing counter
Why? Because I think it is going to rally in this falling wedge, in a rising wedge manner, okay, and just to reach somewhere over here, and again do a corrective of this triangle to reach somewhere 36,000, and again there will be nasty move. यानी in short बैंक निफ्टी में बहुत ही सॉलिड मूव्स आने वाले हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा केयरफुल ट्रेड करना है, बड़ी स्विंग्स वाला ये काउंटर है। एज यू कैन सी लॉट ऑफ बिग वेव्स आर गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द बैंक निफ्टी। सो इसमें कोई भी छोटे ट्रेड के चक्कर में बड़े में फंसना नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। फिलहाल मंडे एंड फॉर दिस वीक बहुत ही सिंपल लेवल है, बहुत ही। सी जो फ्राइडे का ओपनिंग प्राइस है अपना, और जो मैंने थर्सडे फ्राइडे को मॉब लेवल दिया था 39,125, this is going to be the mob level for this entire week and for tomorrow as well. So your weekly make or break level, yani trend deciding level, that should be 39,175. Below this we are bearish, we have almost broken this structure, okay. So this ideally should translate into some down move. So first target will be your 37,900, okay, over here, and second target will be the retest of this 50-day moving average, which is at 37,400. Okay, I don't think bank nifty is going to go below 37,400 because I think it is going to protect that rising wedge structure. अगर ये 37,400 के नीचे जाता है दोस्तों तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इन दैट केस फिर एनीथिंग इज पॉसिबल। सो I won't write specific level, but yeah, 36,400 will be in a panic sell off, okay, somewhere here, panic sell off, okay. So 39,175 के ऊपर all gates are open to reach till 40,320, okay, in bits and pieces। बीच में 39,670 का पहला टारगेट है, जो मैं लिखना भूल गया, 39,670 का पहला टारगेट है, and then 40,320 is the second target. So I think बैंक निफ्टी is very critical। अगर मैं एक बेट लेना चाहूँ तो मेरे ख्याल से पहले थोड़ा नीचे की गिरावट होनी चाहिए, somewhere near this 37,900 it should come, and then again it should start the next move on the higher side। So अगर आप बैंक निफ्टी को थोड़ा सा लेवल्स को नोट करेंगे, ध्यान से ट्रेड करेंगे, आई थिंक बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड एंड वाइल्ड स्विंग्स। सो दैट्स ऑल ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अब सीधे चलते हैं हमारे स्टॉक एनालिसिस पे, ओके। So now let me know what are the stock queries that you have, because I think many people were messaging HDFC, Astral buying level, Poonawalla, FinCorp. Yeah. So I think now the market is precisely in the hands of the individual stocks. I think index से अब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Obviously फर्क तो पड़ता ही है, but I think for the time being, if you are watching good stocks, I think it will remain immune to this index volatility to a large extent. At least 70% immunity उसको मिलेगी, ठीक है। भारत रसायन पे एक क्वेरी है, भारत रसायन, ओके। दोस्तों चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। सो भारत रसायन इज बुलिश। आई थिंक इफ यू आर होल्डिंग इट लॉन्ग, आई थिंक you can keep a stop loss of say 11,300, and somewhere near the new highs it should come. Obviously it will take time, earnings भी आ रही हैं, before earnings I think it can hit this 14,400 level, okay, then again drop a little bit towards 12,000 and again resume, probably something like this I'm sensing to happen in this stock, ठीक है। So before earnings or just near earnings, if you see this level, you can take out your profits. If you get a dip again at 12,300, again enter for another new high sort of a trade। याद रखिए कि सबसे क्रूशियल लेवल इस स्टॉक पे 11,200 का होगा, which is the 200-day moving average। So till we are above this, it can keep continue going higher, okay। If you draw the chart also, you will see a fantastic sort of a channel, a huge big channel, and आप इस चैनल का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। So that's the update on योर क्वेरी। आज देखिए बहुत स्टॉक क्वेरीज है, जो सुपर चैट होंगे मैं उनको ले लूँगा, बाकी क्वेरीज हम कल लेंगे। लेट मी सी, सुदर्शन
chemicals, Sudarshan Chemical Industries. The Sudarshan Chemical has just started to take off. I think अगर आपने बाय किया है तो 520 का स्टॉप लॉस होगा and you can expect 720 in this counter. Okay. Now एक चीज मैं कहता हूँ कि देखो कोई भी स्टॉक्स में ना, please don't buy at upper level. Okay, please don't trade breakouts if you don't know what actually is a breakout. Okay, now in this stock a very super trade will come on decline because you see the moving averages, they are coiled together and placed here, which is a good flip zone. So मैं समझता हूँ यहाँ पे एक 595 के आसपास अगर कोई बाय करता है तो अच्छा ट्रेड होगा, और आपका स्टॉप लॉस के तौर पे आप रख सकते हैं 530 को. So buy near this 590, stop loss 530, and next target immediately 720 is the bare minimum target. ठीक है. I think it's a 80% success probability sort of a trade. Poonawalla FinCorp. Poonawalla FinCorp. Let me know the spelling, please. Uh, Astral Buying Level. Astral Limited. Astral Buying Level. See, Astral buying level, if you want buying level, the best level is, retest of the 2100, buy over there. You can keep a stop loss of 1900 and wait for the new highs to get hit. Now, see, this it's a very nice chart structure, because generally क्या होता है इस type की chart structure जो होते हैं, they are generally pump and dump, which means that they will move like this, and later on if they are not dumped, they will break out massively. ठीक है, तो इस चार्ट का फोटो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आई थिंक आपके लिए काम आएगा. इस तरीके का आप एक चैनल ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे बाय कीजिए. ओके, कीप स्टॉप लॉस बिलो से 1900, जस्ट अंडर 1900, एंड वेट फॉर से दिस which is 24, then again buy 2180 for a new high 2700. ठीक है, अगेन पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना. ओके, क्रूड एक आउट ऑफ सिलेबस चीज अगर निकला तो फिर सारी चीजें ढह जाएंगी. लेट मी वॉर्न यू, क्रूड अगर आउट ऑफ सिलेबस निकला, क्योंकि कई साल हो चुके हैं और क्रूड ने तांडव नहीं दिखाया है. लास्ट टाइम इसने दिखाया था जुलाई 2008. दैट टाइम आई वाज जस्ट लर्निंग, सो आई स्टिल रिमेंबर द राइज in that month, followed by the capitulation. That was massive. Okay, so थोड़ा सा सावधानी. गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे. ONGC, KEC, लॉट ऑफ क्वेरीज. गोदरेज प्रॉपर्टीज पे अभी कोई ट्रेड नहीं है. लास्ट टाइम जब ऊपर जा रहा था तभी भी मैंने बोला था कि अगर अटके हो तो निकल जाओ. ठीक है, सो अभी कोई ट्रेड नहीं है. वी विल वेट फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज टू कम आउट ऑफ दिस डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर. अभी ये 1900 से 1500 1400 के स्लैब में बहुत ये टाइम वेस्ट करेगा. ठीक है, हर रोज मैं इन क्रिटिकल स्टॉक्स को अपडेट करता हूँ, आप लोग नोट नहीं करते. पूनावाला FinCorp with a double L. So Poonawalla FinCorp is a good counter. I think इसमें वेट करना चाहिए. Okay, let us wait. Now see one more thing. These private counters who are into the business of lending, their cost of funds are definitely going to go higher in coming future. So I don't know how they will cope up. I don't know. So that is why be careful on such counters, which started their rally just in last 10 months और 12 months. थोड़ा सा इनमें सावधानी रखिए और हमेशा एक डीपर करेक्शन पे बाय करो, नहीं तो मत करो. Now this stock Poonawalla FinCorp, I think I will wait for 230 minimum to come and then see. 230 210 के आसपास. पेटीएम में दोस्त एक ही चीज मैं कहता हूँ, और जब से लिस्ट हुआ है उसी दिन से ग्रुप में भी मैंने कहा है कि इसमें से निकल जाओ. फॉर द शॉर्ट टर्म में भी 1035 तक की पुल बैक आ सकती है. ओवरऑल जहां भी मौका मिले निकल जाओ इसमें से. ठीक है, टाटा स्टील पे क्वेरी है. सी मेटल काउंटर्स कोई नहीं पूछ रहा है, और मेटल काउंटर्स में देखो बहुत ही बढ़िया तेजी होने वाली है. सो टाटा स्टील अगेन सेकेंड टाइम इट इज कमिंग, फैंटास्टिक, ग्रेट. टाटा स्टील को जो है कोई भी डिप आए इसे अब सिर्फ बाय करना है. आई थिंक वी हैव सील्ड द बॉटम एट 1070. आई थिंक टाटा स्टील एंड हिंडाल्को एंड दीज काउंटर्स, स्पेशली हिंडाल्को, क्योंकि हिंडाल्को में पहले से ही बुलिश हूँ. So these are all buy on dip sort of a trade.
सो टाटा स्टील में कोई भी गिरावट अगर मिले जैसे कल परसों में, तो आप इसे बाय करिए 1100 1150 के स्लैब में, 1050 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1400, टारगेट 1300. सो वेरी नाइस, वेरी गुड for Tata Steel, for metals as a whole. So we are coming off this channel after almost long time, 6 months के बाद आ रहे हैं, जो कि लगभग 200 दिन का टाइम साइकिल होता है. अभी मैंने निफ्टी पे आपको 175 डेज का एक बात बताया, जो कि खुद एक 6 महीने में ट्रांसलेट होता है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट टाइम साइकिल्स. सो आई थिंक टाटा स्टील को एक बार चांस मिलना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, सो दैट्स इट. हाँ, फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे. फ्यूचर्स वगैरह के लिए आपको प्रिसाइज एंट्री और प्रिसाइज सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. ये कैश में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. दोस्तों एक अपडेट दे देता हूँ दैट द नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड पॉसिबली जस्ट 2 trainings कैन हैपन इज scheduled on Feb 12th and 13th. If you are interested to learn price action technicals, mob level and all these things, you can WhatsApp over here, number description box में दिया है, and you can join, you can register for this training. 2 days training है, full on hectic है. So खा पी के आना अगर आना है तो. And once you register, you will be added in our Telegram group for a period of 3 months. The coming 3 months are going to be really crazy. Okay, so let us take some new stock. Bata is an investment counter. पहले भी बता चुका हूँ कि Bata India is one of our top pick for a massive rally in the medium term. Recently profit booking करने के लिए कहा था, correct? And we are expecting a decline. So I think टाटा कह रहा हूँ, बाटा में अगर आपको पोजीशन बनानी है फ्रेश, तो थोड़ा सा आप वेट करिए. ठीक है, या तो ये वापस से निकल पड़े 2000 के ऊपर, या फिर इसे मैं थोड़ा सा 50-60 रुपए और नीचे, अगर मुझे ये स्टॉक यहाँ मिले 1880 से लेके 1780, से दिस इज द स्लैब. इफ आई गेट दिस स्टॉक हियर, आई विल बाय इट. स्टॉप लॉस 1680, and then all new highs and all those 2500 2700 will be target. Okay, सपोज नीचे नहीं आता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, तो हम ब्रेकआउट पे बाय करेंगे और ये स्विंग पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट न्यू हाई. ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो कंटिन्यूएशन या तो पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन. जिन्होंने भी अभी रिसेंट की ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, उनको ये पुल बैक और कंटिन्यूएशन, इन चीज़ों पे ज़्यादा मैंने फोकस किया है, ज़्यादा एम्फोसाइज किया है. ONGC पे अगली क्वेरी है. ONGC, इन्फोसिस. सी आईटी पैक से एक चीज़ बता रहा हूँ कि आईटी पैक से निकलने का प्लीज़ तैयारी कर लीजिए. आईटी पैक की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं. ठीक है, सो आईटी में प्लीज़ बी कॉशियस. इन्फोसिस अगेन इज डूइंग वेरी नाइस थिंग. अगर आप इसमें बायर हैं, मैं समझता हूँ, सॉरी इन्फोसिस कह रहा हूँ, ओएनजीसी होल्ड करिए 160 162 के स्टॉप लॉस के साथ. ऑल्दो इट इज जस्ट एट अ रेजिस्टेंस, आई एम सेंसिंग दैट ओएनजीसी शुड ब्रेक आउट further. Okay, so I like ONGC at this stage. Now why I am liking this is because if you see, this stock is doing a typical human behavior. And what is that? Suppose this is a place you want to visit, you come after a long time, you visit and you are rejected, but again you get the desire to revisit, you revisit it, and again you are spending some time. What does it show? It shows interest. ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट है तो या तो ब्रेकआउट देगा या पुल बैक और फिर ब्रेकआउट देगा. तो निश्चित क्या है? ब्रेकआउट. समझ गए? राइट, मैथ्स में एक था ना, वो कॉमन कॉमन कट करते थे, जो बचता था दैट वाज द आंसर. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू चार्ट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. ठीक है, सो बुलिश है. ओएनजीसी मैं समझता हूँ जो है ट्रेल करना चाहिए. अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो भी करेक्शन पे करेंगे 155 के आसपास. आई थिंक ओएनजीसी डिजर्व्स 200 very easily. The long term chart, if you see on the left hand side, this is the monthly chart of ONGC. Since last 7 years we have got a huge breakout. We consolidated for almost 3 months, and last one we have got a huge pump. I think ONGC deserves 200 without a shadow of doubt. ठीक है, सो 170 पे है अभी, ट्रेलिंग के लिए 162 है. यहाँ निकल जाना अगर आप लॉन्ग हैं तो. अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया तो बल्ले बल्ले, और यदि करेक्शन में मिला तो भी इसे हम बाय करेंगे. करेक्शन मैं अभी बता देता हूँ, 150 का एक अच्छा लेवल होगा, 130 के स्टॉप लॉस से टारगेट 204 होगा. ओएनजीसी पे डिटेल्ड आज एनालिसिस में कर चुका हूँ, इसे मैं रिपीट नहीं करूँगा आने वाले दिनों में.
State Bank of India. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑलमोस्ट रीच्ड इट्स टारगेट. हालांकि टारगेट तो 570 है, बट आई थिंक यू नो वाई टू टेक पंगा ओवर हियर विद पीएसयू बैंक. बजट भी हो चुका है और एक आरबीआई का इवेंट है. सो आप या तो निकलिए, प्रॉफिट बुकिंग करिए, और कोई डिप वगैरह आएगा तो वापस बाय करेंगे. ओवरऑल 570 शुड कम, बट if you want to take a chance, you can take a chance with trailing 495 for 570 and 597 as a target. Okay. देखो, जो स्वीट पोर्शन होता है ना, उसे खा के छोड़ देना चाहिए. पूरा चेज नहीं करना चाहिए. जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ मैंने अच्छे से बताया है कि नेवर चेज एक्सट्रीम एंड टू एंड मूव्स, बिकॉज जनरली वो लास्ट के स्लैब में ही प्रॉब्लम होता है, आप वहीं पे फंसोगे. टाइटन, सो टाइटन हैज़ बाउंस्ड बैक वेरी नाइसली. टाइटन के लिए मेरा प्लान ये था कि अगर ये 2200 के आसपास मिले तो उसे हम बाय करेंगे, बट इट हैज रिवर्स्ड मिडवे. सो वन थिंग इज वेरी सर्टन, एंड दैट इज दिस 2200 is now a floor for this stock Titan, and your 2700 is a ceiling for Titan. So how would you like to play? Number one, this is a nice entry point, which is 2340. You get a pullback by 2340, stop loss under 2200, target is very simple, 2700. That's it. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है. और ये इस समय या तो एक रीएक्यूमुलेशन में है या डिस्ट्रीब्यूशन में है. अगला क्वेरी है स्टार हेल्थ. आई कैन टेक ओनली वन क्वेरी पर पर्सन. सो जो लोग मल्टीपल क्वेरीज टाइप कर रहे हैं प्लीज मत करो, या तो फिर सुपर चैट करो. ओके, सो स्टार हेल्थ, सी स्टार हेल्थ राइट नाउ, I'm not very bullish and nothing. Okay, hardly there is any data to identify any trend in terms of support resistance. 750 is a good support and 850 is a good resistance. Take your chance. नेक्स्ट क्वेरी है, आई कैन सी M&M महिंद्रा पे. M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा. ओके, सो M&M में किसी ने कॉल वॉल बाय किया. देखो, कॉल पुट का कोई आइडिया नहीं यहाँ पे हम दे सकते, क्योंकि उसके लिए आपको प्रिसाइज एनालिसिस चाहिए. ठीक है, फिलहाल आई थिंक M&M में हम पहले बुलिश थे, अभी भी थे. आई थिंक सम अर्निंग्स प्रेशर इज गेटिंग क्रिएटेड. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बाय दिस डिप्स at say 800 sort of level. 828 शायद मैंने एक ऑलरेडी लेवल दिया है. सो बाय इन दिस स्लैब. ओके, 810 to 828 something. Okay, and I would like to keep 780 as a stop loss. Okay, I think this stock Mahindra and Mahindra deserves one spike again till 970, like the last time. Last time also it came very close and then bounced. So this time also I'm expecting at least this to happen. Okay, why so? Because it is the late stage mover in the auto pack. Okay, and this is its entire territory. So ये इसका पूरा टेरिटरी है जो कि अभी फॉर्मेशन जोन में है. पहला एक हाफ सील हो चुका है यहाँ पे, अब दूसरे हाफ की तैयारी हो रही है. सो यहाँ पे हम बाय करेंगे, इसको स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड दिस विल बी द टारगेट. ठीक है, सो दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस एनालिसिस महिंद्रा एंड महिंद्रा. रही बात कॉल पुट की, तो वो तो बॉस देखो, नेकेड काम करोगे कॉल पुट में तो यही होगा. इट्स प्योर लक. सन फार्मा भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीक दैट इट्स अ बुलिश काउंटर, बाय ऑन डिप करेंगे, बहुत हायर लेवल्स आने वाले हैं. ठीक है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो दीज आर रेजिस्टेंसेस, ट्राई टू बुक आउट, और नेक्स्ट राउंड में अगेन वी विल बाय ऑन डिप. सो सन फार्मा बाय ऑन डिप की अप्रोच मेंटेन की जाएगी काफी समय तक. कब तक? जब तक कि सन फार्मा अपना ऑल टाइम न्यू हाई 1442 पे ना बना दे. ठीक है, सो इमीडिएट पहला टारगेट है 1000 रुपए का, 1005. दैट इज द फर्स्ट टारगेट इन दिस स्विंग, एंड लेटर ऑन वी मे गेट 1500 ऑल्सो. 1500 का अभी वादा नहीं कर सकता, हाँ 1005 का वादा कर सकता हूँ. ठीक है, Infosys chart. See, Infosys, Wipro, and all these IT stocks, बहुत निकलो. ठीक है, any approve that comes, wherever you are stuck, try to exit. Rest, I don't want to say much about these in IT bag stocks, because IT bag में देखो, मैं कोविड के टाइम से खिला रहा हूँ. I've given multi baggers even when they were like normal stock like my Mindtree. 750 से ऑलमोस्ट आप देख लो कहाँ पे. So that golden era, I think it is gone. Right now, what best we have is, suppose you are smart and you bought here in these areas. ठीक है, so play these areas, buy on एकदम cheap level at say 1675, keep a stop loss 1600,
and then try to book out, and the left hand side resistances were like 1850, then it will go up. What will happen? You will again get attracted and you will again buy here only to see it moving little higher and again dropping back. So don't do these things. Buy the edges. Be a buy, trade the edges and be a ledges. इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, एज पे प्ले करेंगे, कॉमन जो एज है बस वहां पे, तो नीचे बाय, यहाँ पे बुक, ठीक है, इसके ऊपर का छोड़ दो, ऊपर गया यहाँ पे शॉर्ट, नीचे वापस बुक, बीच का छोड़ दो, दूसरे स्टॉक की तरफ चलो. अंडरस्टैंडिंग? Play the edge, be a ledge. So that's the update coming on Infosys, and monthly bearish engulfing candle formation हो चुका है. हालांकि I don't think that they are going to crack as of now, okay, at least for next 1 month or so. But the logic is this is a massive reversal candle which will sometime in future show its effect. As of now, there is no effect. The effect is already done. मारुति यार वही क्वेरी बार बार पूछते हो. मारुति में बता चुका हूं कि 2 टारगेट 8,300 8,900 हो चुके हैं. अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें जब तक कि कोई डिक्लाइन ना हो. तो मारुति में इफ वी गेट, लास्ट टाइम ह्यूज अप मूव रेकमेंड किया था मैंने, वेरी वेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड था क्योंकि मंथली चार्ट्स पे दिख चुका था. अगेन आई हैव सेड ह्यूज अपसाइड्स आर पेंडिंग इन मारुति. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. Okay, this is just the beginning. So let us wait for correction. Suppose you are playing for 10,000 and 11,000, all those targets, then there is no need to ask any query, because for you the only option is to trail at 7,200 and wait till 10,000, 11,000, 13,000 and all these levels are hit, right? Now suppose if you are a technical trader, you want to trade fresh, then what you can do is buy at this level, buy near 8250, 8250, keep a stop loss 7,800, target 9,600. So see, I can give lot of trade ideas, but the problem is people will not follow. That is why I don't share these ideas. Okay, I share only the safest ones. What will happen is it will come here, you will buy, but if it goes down, you will not exit and you will be trapped. So when the actual buying level comes, you are already trapped at the higher level. That is the problem. अच्छा कंसोलिडेशन है, नीचे मिला उठा लो. अगर बड़ा टारगेट खेलना चाहते हो तो, अगर छोटा मोटा गेम करना है तो वेट करो, जिस दिन करेक्शन आएगा तब बाय करेंगे. दैट्स इट. KEC International. KEC International almost reaching towards the new high. Whenever it does, kindly book your profits. Okay, it's a very simple and secular stock, just like most Indians are secular. So next time, whenever you get a good correction at 476, you can buy. Stop loss 436. Target will be again 600. तो अभी का भी बता चुका हूँ और आगे के स्विंग का भी बता चुका हूँ. वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना आप, ठीक है. SRF Limited, one of my close stock. So SRF में क्या करेंगे, गिरावट आती है 2260 पे बाय करेंगे, सिर्फ 2190 के स्टॉप लॉस से. टारगेट होगा न्यू हाई, ठीक है. इस स्टॉक को मैं किसी दिन डिटेल में डिस्कस करूंगा. लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे इस स्टॉक को हमने जो है पिक किया था फॉर उस टाइम इट वाज ट्रेडिंग at the pre-split price and it was I think 2,500 or 3,000 something. And that time in one of the mentorship session, I had done the long-term analysis and said it will go 13,000. And even I didn't know what was the catalyst, but indeed it went almost at 13,000. I think 13,000 will be this level. So it's a massive counter and it's a very huge counter actually. So ये आपके रडार पे होना चाहिए, ठीक है. दिस मस्ट बी ऑन योर रडार फॉर बिग स्विंग्स, बिग ट्रेड. अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 2270 या 2250 के आसपास यहाँ बाई करेंगे और 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखेंगे. 2250 के नीचे 2150 मैक्सिमम, एंड टारगेट होगा बहुत बड़ा 2800 3000. नेक्स्ट क्वेरी है ITC एंड आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. अपर सर्किट हिट हो चुका है आज के लाइव सेशन का. 1 घंटा 20 मिनट होने को आ रहा है. सो ITC, इफ यू रिमेंबर, मैंने क्या
आईटीसी के बारे में व्यू दिया था, अगर किसी को याद है तो पहले बता दे, तो मैं आगे का बताता हूँ। आईटीसी में ये कहा था कि 210, 212, 208, 205, 200 के आसपास जहां भी मिले उठा लो, 180 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट एक ही होगा, 320। ठीक है, जिन्होंने भी लास्ट वाली ट्रेनिंग अटेंड की है, आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टू ट्रेनिंग और लास्ट टू लास्ट, आई थिंक इट वाज ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। ठीक है, उसमें इफ दो स्टूडेंट्स आर वाचिंग, यू विल रिकॉल कि हमने आईटीसी पे कैसे 320 का टारगेट निकाला था, क्या लॉजिक लगाया था, क्या एनालिसिस की थी ना, एंड टुडे इट इज एट 240, from 210 to 240, more than 15% jump in no time. This is what I call a high conviction trade. हाई कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन होता है बॉस। चलिए कुछ और क्वेरीज लेते हैं। टीसीएस फॉर शॉर्ट टर्म, आईटी में देखो शॉर्ट टर्म कुछ नहीं करना है, जो फंसे हैं वो निकलने की तैयारी करें। ठीक है, वही कॉन्टेक्स्ट है आईटी पैक में फॉर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। So I will not repeat. Instead of, see, this is the, now you see how these guys play with people's mind. Everybody will be interested in IT. Why? Because everybody missed the IT. And while you are interested in IT, they are disinterested in IT. So that is what I'm trying to tell you, that यहाँ पे if you are stuck etc, then use any bounce to just exit and forget IT, move to some other stocks. If you are a player in the market, then I think you will get better charts, you will get better levels. As far as TCS is concerned, I think 3600 to 4000 ये 400 में ही घूमेगा, तो आप एक बार निकलिए और 3600 पे बाय या तो 4000 पे एग्जिट। यस, प्लस डिविडेंड वो तो अलग ही बात है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे दोस्तों। दोस्तों चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दब नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लेट मी जस्ट क्विकली अपडेट फॉर द न्यू पीपल हु हैव जस्ट नाउ स्टार्टेड वाचिंग दैट नेक्स्ट ट्रेनिंग इज स्केड्यूल्ड ऑन February 12th and 13th. If you are interested to learn price action, technical analysis, and pro trading setups, you are welcome. You can join and register. Endurance Technology trading at 233 moving average. क्या करना चाहिए? स्टॉक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के बैठा है एंड अर्निंग्स आ रही है। सो इस स्टॉक में मेरी तरफ से अभी मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा, बिकॉज इट इज जस्ट सिटिंग साइलेंटली। ये शकुनी मामा है, कौन सा दाव चलेगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो बच के रहना। अगर लॉन्ग है तो 1480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना, एंड वंस इट स्टार्ट्स टू ट्रेड अबाउट 1736 इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तब इसे आप कैरी कर सकते हो। उस वक्त आपका 1480 स्टॉप लॉस हो जाएगा फॉर अ टारगेट ऑफ से 2120। ठीक है, तभी होगा। फ्रेश ट्रेड अभी नहीं है, अगर आप बायर हैं तो 1480 का स्टॉप लॉस रखिए। और ऐसा दिखा आपको आने वाले कुछ हफ्तों में अबाउट 1736, देन सेफ टू कैरी, यू कैन होल्ड फॉर 2120, maintaining this as a stop loss. If you want to book somewhere in between, then 1920 will also be a good level. That is also where you can book profits. ठीक है, कोफोर्ज बाइंग जोन अगेन एक बढ़िया स्टॉक था, बट धज्जियां उड़ गई हैं और अभी इस वक्त हीलिंग जोन में है ये स्टॉक। तो इसमें देखो एक्चुअली मैं ऐसे ट्रेड नहीं सजेस्ट करता, एंड आई एम रियली स्कैर्ड लुकिंग एट द नंबर ऑफ क्वेरीज ऑन IT sector, which again reinstates my view that they are disinterested while the public is interested. Now having said all this ज्ञान, ये जो लेग था ना, ये अब यहाँ है, ये जो लेग यहाँ था ये अब शिफ्ट होके यहाँ हो चुका है। इसका मतलब कोफोर्ज की सीमा तय हो गई है 5500 और 4200। तो अगर आपने इसे बाय किया है या बाय करना चाहते हो तो देखो 4500 पे एक बाय है। प्रॉब्लम है कि स्टॉप लॉस बहुत डीप है 4100 के आसपास, एंड टारगेट बहुत लिमिटेड है जो कि पता नहीं कितने टाइम में आएगा। इट कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस जोन, टॉस अराउंड करते करते आएगा। ठीक है, सो देखिए क्या करना है। 4500 पे बाय कर सकते हो प्रोवाइडेड स्टॉप लॉस बहुत डीप है। मैं जनरली अवॉइड करूंगा इसे। एक ही केस में हम ट्रेड कर सकते हैं, एंड विच इज बाय एट से 4500
and keep the stop loss at 4235. 4235 ये लेवल कहाँ से आ रहा है ये मैं बाद में बताऊंगा. 4235, 4500 and 5050 first target and second somewhere here 5180. इस तरीके से निकल जाओ. So that's it on GoForge. हिंदुस्तान कॉपर सेक्टर रोटेशन को समझो. सेक्टर रोटेशन क्या है कि पब्लिक ने जिस चीज को मिस किया है अभी वो उसे बाय करेंगे, पब्लिक जिसमें बाय कर रही है उसको वो घुमाएंगे. वेरी गुड क्वेरी. आई थिंक द बेस्ट क्वेरी फॉर टुडेज सेशन. हिंदुस्तान कॉपर रिवाइवल हो रहा है. सेक्टर बढ़िया एक रिवाइव करने वाला है. रिवाइव इन द सेंस स्टॉक प्राइसेस नॉट द एक्चुअल सेक्टर. आई थिंक इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए. ठीक है, 114 115 ये बहुत ही सिक्योर्ड बॉटम है. आई लाइक दिस चार्ट स्ट्रक्चर. ओके, आई लाइक दिस राउंडिंग शेप स्ट्रक्चर गेटिंग फॉर्म्ड. Okay, with one good pump at the bottom price followed by pump every time it is coming at the lower slab, thereby suggesting that there are indeed interested buyers with money power, not just opinions and desires, money power. So इसका क्या मतलब है? इन शॉर्ट ये हमारा सीमा ठीक है 110 114 का स्टॉप लॉस रखिए और मैं समझता हूँ इस स्टॉक को आपको रखना चाहिए जब तक कि ये 190 200 नहीं जाता. सो आई थिंक इट डिजर्व्स टू बी केप्ट फॉर अ बिग मूव, फॉर अ बिग शॉट. अगर आपको बिग नहीं छोटा खेलना है देन 160 इज अ गुड टारगेट टू एग्जिट. ठीक है, सो डिटेल्ड एनालिसिस है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर पे. जुबिलियंट फूड वर्क्स पे ये एक एनालिसिस चाहते हैं. जुबिलियंट फूड वर्क्स पे सो लास्ट वीक इस स्टॉक को जो है गिरने के पहले यहाँ पे मना कर दिया गया था. पहले हम इसमें बायर बनना चाहते थे बट देन मार्केट रिवर्स्ड एंड देन आई व्हाट यू से वी डिस्कार्डेड दैट व्यू. ओके, और जिन जिन स्टॉक्स में मैं अपडेट मैंने किया गोदरेज प्रॉपर्टीज, जुबिलेंट फूडवर्क, IEX एंड देयर आर मेनी अदर्स, वो सब अपना पुराना बॉटम ब्रेक कर चुके हैं. So again, why Jubilant Foodwork is behaving like this? What happened to the pizza? तो दोस्त कोविड खत्म हो गया. कोविड खत्म हो गया तो all the COVID theme stocks they are of no use. They have run out of proportion their valuation metrics for the next 5 years. तो ये सारे stocks याद रखना डंपिंग का शिकार होंगे फ्यूचर में. ठीक है, नाउ अभी कैसे अप्रोच करना है? So it is forming a 1 2 3 पैटर्न at the bottom. अगर आप इसमें लॉन्ग हैं तो आप 3000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं. अगर वो बड़ा लगे तो 3100 कर दो. ब्रॉडली स्पीकिंग ये आखिरी होप है स्टॉक के लिए 3000. ठीक है, एंड देन इफ यू गेट दिस लेवल विच इज से 3650, टोटल एग्जिट यहाँ पे कर देना चाहिए. इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि 3450 के आसपास ही निकलने की तैयारी शुरू कर देना है यहाँ पे समवेयर ओवर. ठीक है, this may translate into a channel in future like this, and then this may translate in a sort of a larger head and shoulder like this. I don't think that this stock till its next earnings which is scheduled in mid-May, I don't think this stock is going to cross above this level of say 4000, because if it does it means that there is one more disease that is going to come. ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट को समझो. देखो कॉन्टेक्स्ट ही मैं सिखाता हूँ और कुछ है नहीं मेरे पास सिखाने के लिए. अनपढ़ आदमी हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास. मुझे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमन साइकोलॉजी बस यही चीज़ आती है. ठीक है, कोई पूछ रहा है बेस्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे. इनमें से कोई भी ट्रेड कर लो. इंट्राडे ट्रेड करने आना चाहिए, बेस्ट स्टॉक से नहीं. एक घटिया स्टॉक को भी आप इंट्राडे बेस्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हो अगर ट्रेड करने आता हो. इस बात को समझो, दोनों में बहुत अंतर है. स्टॉक बेस्ट हो सकता है पर जरूरी नहीं कि आप उससे पैसा कमा लो. अगर आप बेस्ट हो तो किसी भी स्टॉक से पैसा कमा सकते हो. नाउ नेस्ले इंडिया अगेन एट अ डिसेंट इन्वेस्टर प्राइस है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो 100 में से 25 रुपए यहाँ पे डालना ठीक होगा 18,000 के आसपास. दैट्स इट. ओके, सो अगेन प्योर इन्वेस्टमेंट है ये स्टॉक, कोई ट्रेडिंग बेट नहीं है. रिलैक्सो फुटवेयर्स की तरफ चलते हैं. सेशन तो बहुत लंबा हो चुका है.
वी आर अप्रोचिंग 1 hour 30 minutes, और समय इस समय 30 minutes past 12 midnight हो चुका है. So relaxo footwear, I think with COVID out, there will be more foot stepping outside the homes. So definitely this calls for a bullishness. इसमें बने रहिए 1150 के स्टॉप लॉस के साथ. इसको जब तक ये 1500 नहीं जाता बने रहिए. ठीक है, सिंस आई नो यू, आई कैन टेक द अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस व्यू. ठीक है, 1560 should be the target, provided you can hold with 1150 as a stop loss. Once it reaches 1500 we can review it again. ठीक है. सो रिलैक्सो फुटवेयर हो गया, नेस्ले हो गया, सेल, अरे बहुत दिनों बाद सेल दिखाई दिया, कहाँ थे सेल. सो क्यों मैंने ऐसा कहा कि ये स्टॉक बहुत दिनों बाद, बिकॉज द मेटल स्टॉक्स दे आर लुकिंग एज इफ सम रिवाइवल is going to happen. Right now, that revival may not be a demand led revival, that may be simply due to hyperinflation, or that may be due to the shortage in the commodity prices, that may be due to the rate hike cycle, or you know, I still don't believe that it is mostly demand led. I think it is somewhere supply led, or somewhere the uh, bad monetary policy of the US Fed for the last 13 years, जिसका इम्पैक्ट हमें कमोडिटीज के बुल मार्केट के साइकिल के रूप में झेलना पड़ेगा. एनीवेज, फिलहाल देखिए ये स्टॉक जो है 112 से लेके 98 रुपीज के रेंज में यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ठीक है, और आई थिंक ये 112 से लेके 9800 के स्लैब में ये ट्रेड होगा एटलीस्ट कुछ दिनों तक. उसके बाद ही इसमें कोई नया व्यू लिया जा सकता है. ओवरऑल मैं इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ा बुलिश अब तक तो नहीं था, अब हो सकता हूँ अगर मेटल्स चलना शुरू करें, अगर ये स्टॉक कुछ ऐसे करे, ठीक है, तब मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा. ओवरऑल लिमिटेड अपसाइड तो यहाँ तक ही दिख रही है. 130 इज द मैक्सिमम सीलिंग. इवन इन केस ऑफ दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न, स्टिल 130 इज अ सीलिंग. For the time being, with bullishness coming back into the metal sector, we can say that the bottom is sealed at 95, as well as the ceiling is sealed at 130. Immediately 112, 98, 112, 98, then 120, then 14, then 130. अभी जो मैंने कहा है अगर समझ में आया तो इसका फोटो ले लेना, समझ में आया तो क्लिप को सेव कर लेना मोबाइल में, और लेट अस मीट इन द मंथ ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, और इसे हम रिव्यू करेंगे कि क्या हर लेग ऐसी हुई या नहीं हुई. जो भी है, केपीआईटी इज द नेक्स्ट क्वेरी एंड देन वी आर वाइंडिंग अप. और दोस्तों चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह, डिसलाइक वगैरह, कमेंट वगैरह करना ना भूलें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें. एंड केपीआईटी is again getting distributed slowly and nicely, trapping people, right? So स्टॉक में अभी लॉन्ग मत करना, लेट अस वेट. भाग गया भाग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे ख्याल से इसमें रुको. ठीक है, इसमें अभी रुकना चाहिए. स्टॉक और गिर सकता है, 550 तक गिर सकता है. 550 अगर गिरा तो आई थिंक स्टॉक और गिर जाएगा. तो दो चीजें होंगी. नंबर वन, either it will not drop below 600 on a sustainable basis, probably bounce back like this and start some runaway on the higher side, or if it breaks then I think it will not stop till 480. इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉक से हट जाओ, क्योंकि ये बहुत ही डाइसी है. लुक एट दिस, वेरी वेरी डाइसी. जनरली इसको अगर मैं अपना लॉजिक लगाऊं प्राइस एक्शन का, तो दिस इज अ वाइड रेंज कैंडल, so we should flush through it, and if we come then long here with this as a stop loss, minimum 61% retracement of this leg, यानी 720. तो जब तक ये नहीं होता इसे नहीं टच करना है. जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं आई थिंक सिर्फ वही समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. इसलिए मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन सीखो. और प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं कि कैंडल स्टिक्स, there is a whole lot of science behind price action. कोई मैसेज कर रहा है, कैन आईटीसी टच 300? हाँ हाँ करेगा, 6 महीने में करेगा. ए ई के आई एनर्जी सर्विसेज, कहाँ से स्टॉक लाते हो? बीएससी का काउंटर है, बीएससी में सब झोल होता है, पता है ना आपको. लुक एट दिस. ठीक है, रेनबो कलर का चार्ट बन गया. तो ये सब स्टॉक से निकलो. गोदरेज सीपी, गोदरेज सीपी एक काउंटर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. So Godrej CP is on my radar definitely.
Right now I think stock 950 is some upper limit and you have 860 as a lower limit. So फिलहाल ये 100 पॉइंट के रेंज में है. ओके, राइट नाउ आई थिंक इट शुड डू दिस 950 थिंग. ओके, ओवरऑल क्या सीन है इसमें ये मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल आई थिंक वी आर गोइंग टू सी समथिंग लाइक दिस. तो फिलहाल जाने दो, ठीक है. अगर आप लॉन्ग हैं तो निकलिए, यहाँ पे बुक वगैरह कीजिए. ओके, एंड लेट इट make a structure here, and then we'll buy 865, keep some bottom 820 800 and play for this. जो मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसको आपको सीखना चाहिए. यही जो विजुअलाइजेशन है यही आपकी एज होगी, ठीक है. सो दैट्स इट ऑन गोदरेज सीपी. राइट नाउ 958 960 there you should book, wait for decline, enter here, put this as a stop loss. नेक्स्ट टारगेट में ब्रेकआउट होगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे ही बनेगा और जितना ये गैप है उतना ऊपर का टारगेट आएगा, ठीक है. पूरी कुंडली इसकी आपके सामने है. आखिरी स्टॉक टाटा Elixir before we bid Tata bye bye. So Tata Elixir right now being an IT pack, but mostly on the other side of the business, I think two highs are made. एक और हाई बन सकता है और उसके बाद ये 1 2 3 और फिर ये कैपिचुलेट कर सकता है. हालांकि ये बेटर काउंटर है इस पूरे थीम में. सो व्हाट यू कैन डू, नंबर वन, इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग लॉन्ग फ्रॉम लोअर लेवल्स, you if you want to trail, आप stop loss रखिए यहाँ पे which is somewhere 6850. if you get this just new high, exit, पूरा exit करिए and forget about it. Let it drop, let it correct, let it come at much deeper levels and then we will buy fresh for continuation. okay, suppose आप यहाँ कहीं buy हो तो प्लीज बी वेरी केयरफुल और जल्द से जल्द इसमें से निकल जाइए, ठीक है. सेफ बाय कहाँ है, सेफ बाय यहाँ है. स्टॉक अभी कहाँ है, स्टॉक अभी यहाँ है. तो आप समझ जाओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ है. यहाँ मोमेंटम टेक्निकल ट्रेड है, यहाँ एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड है. दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर हर पहलू पे है. आपके माइंड मैनेजमेंट में, आपके मनी मैनेजमेंट में, हर एंगल से दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. इट्स नॉट जस्ट प्राइस दैट यू ट्रेड योर ओन इमोशंस ऑल्सो. चलिए दोस्तों, आई थिंक अब इस समय सेशन को वाइंड अप करने का उचित समय आ गया है. 1 hour 35 minutes की लाइव स्ट्रीमिंग रही है. शेयर, सब्सक्राइब, लाइक का बटन दबाना ना भूलें. कमेंट करके बताइए कैसा लगा लाइव सेशन, क्या आपकी सारी क्वेरीज हमने ली, नहीं ली. जिन स्टॉक्स की क्वेरीज हमने नहीं ली उसको भी आप लिखिए, कल के सेशन में उसे कवर करेंगे. एंड इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द अपकमिंग ट्रेनिंग, क्योंकि सिर्फ 2 ट्रेनिंग हो सकती हैं, दैट्स इट. उसके बाद कई महीनों तक कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं होगा. सो यू आर वेलकम, यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन ज्वाइन. दैट्स इट. विश यू ऑल द बेस्ट. होप यू वुड हैव लाइक दिस सेशन. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गुड नाइट. जय माता दी.